দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় জোর কদমে চলছে তদন্ত। একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। এবার দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে বিরাট আপডেট। দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে জম্মু কাশ্মীরে এক সংবাদপত্রের অফিসে হানা এসআইএ বা স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সূত্রের খবর, কাশ্মীর টাইমস নামে ওই সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের সঙ্গে AK-47 কার্তুজ, পিস্তলের গুলি এবং গ্রেনেডের 3টি লিভার উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে আরও 4 অভিযুক্তকে শ্রীনগর থেকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। দিল্লির লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণ এবং জৈশ-ই মোহাম্মদের ডাক্তার জিহাদি নেটওয়ার্কের তদন্তে বৃহস্পতিবার জম্মুর রেসিডেন্স রোডে ওই সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি চালায় রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা। সম্প্রতি ওই সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে একটি এফআইআর করা হয়। সেই এফআইআরের কারণেই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা এসআইআরের অভিযোগ, পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে লেখা ভারত বিরোধী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় এই সংবাদপত্রে। এইসব প্রতিবেদন লেখকের নামও উল্লেখ থাকে। দেশবিরোধী কার্যকলাপ প্রচারের অভিযোগে সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এসআইএ। ওই সংবাদপত্রের সম্পাদক অনুরাধা ভাসিনের নামও এফআইআরে রয়েছে। একটি সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে ওই সংবাদপত্রের অফিসে থাকা নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলিতে অনুসন্ধান চালানো হয়। এসআইএর তল্লাশি চলাকালীন উদ্ধার হয় AK-47 কার্তুজ, পিস্তলের গুলি এবং গ্রেনেডের 3টি লিভার। এ বিষয়ে জম্মু কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী বলেন, এজেন্সিগুলি তাদের কাজ করছে। যদি কোনো অভিযান চালাতে হয় তবে তা বাছাই করে করা উচিত নয়। যদি তারা কোনো ভুল করে থাকে তবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তবে কেবল চাপ তৈরি করার জন্য নয়। সংবাদপত্র চতুর্থ স্তম্ভ, সাংবাদিকতা অনুশীলনের অন্য জায়গা পাওয়া উচিত। উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী কি বলেছেন এই প্রসঙ্গে শুনুন। अब देखिए, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन है कि अगर रेड मारनी है तो सब पे मारिए, फिर पिक एंड चूज मत करिए। यहाँ एक बड़ा जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार की एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है, उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं है, तो लिहाजा फिर सब पे एक जैसा। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने ज़माने में रहा है, आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशराइज करने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है पत्रकारिता है, पत्रकारिता को एक खुला माहौल मिलना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को एक ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद रख सके। और अगर वो उन्होंने गलत किया होगा तो भुगतेंगे, अगर गलत नहीं किया, अगर ऐसे ही उनको अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए किया गया है तो फिर गलत बात है। दिल्ली ब्लास्ट कराते हैं, दिल्ली की कोशिश की है, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं। मैंने कह दिया, मैंने कहा सब पे होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, पिक एंड चूज करके नहीं किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस को टारगेट नहीं करना चाहिए। सब पे बराबर का आप एक्शन लें और जो गलत है उस पर सही एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो गलत नहीं है, गलत नहीं करता, अगर वो सच छाप रहा है तो उसको दबाने की कोशिश भी नहीं करनी। প্রসঙ্গত অতীতেও কাশ্মীর টাইমসের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী লেখা প্রকাশের অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময়ও এই সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। শ্রীনগরের প্রেস এনক্লেভে অবস্থিত অফিসটি 2020 সালে অল্প সময়ের জন্য সিল করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি গত কয়েক মাস ধরে পত্রিকাটি বিক্রি হচ্ছিল না। কাশ্মীর টাইমস বেদ ভাসিন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং 1954 সালে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। 1964 সালে এটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। আর সেই অফিসেই এবার AK-47 গুলি উদ্ধার হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এর নেপথ্যে কি আরও বড় কিছু লুকিয়ে রয়েছে? যে হোয়াইট কলার মডিউলের কথা বলা হচ্ছে, বিশেষজ্ঞরা, তদন্তকারীরা যে হোয়াইট কলার মডিউল সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, সেই হোয়াইট কলার মডিউলের লিঙ্ক কি এই কাশ্মীর টাইমসের অফিসে পাওয়া যাচ্ছে? তবে যেরকম উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী বললেন যে শুধু ভয় দেখানোর জন্য বা চাপ সৃষ্টি করার জন্য নয়, দরকার হলে সবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিন। যদি সত্যিই কিছু গলত করে থাকে বা ভুল করে থাকে তাহলে ব্যবস্থা নিন, ভয় দেখাবার জন্য নয়।
এই কাশ্মীর টাইমসের বিরুদ্ধে এর আগেও কিন্তু এই দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। আজ তাকের প্রতিনিধি সুনীল ভাট তার প্রতিবেদনে কি বলছেন এই বিষয়ে শোনাবো আপনাদের। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकी इकोसिस्टम पर प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में जो एसआईए है यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर पर जो है रेड कर रही है। यहां पर हम मौजूद हैं जम्मू में रेजिडेंसी रोड पर, जहां पर कश्मीर टाइम्स अखबार का दफ्तर स्थित है। यहां इस इमारत में आप देख सकते हैं कि जो पहली मंजिल और दूसरी मंजिल है, यहाँ पर कश्मीर टाइम्स अखबार का दफ्तर है। और आज सुबह से ही यहाँ पर एसआईए की जो टीम्स हैं वो रेड कर रही है और वहाँ पर कागजात खंगाले जा रहे हैं और वहाँ पर तमाम जो है साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है और उस एफआईआर के अनुसार ये बात सामने आई है कि जो कश्मीर टाइम्स अखबार है इसमें जो लेख छप रहे थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी थे और साथ ही में वो जनता के बीच जो है माहौल बिगाड़ रहे थे। पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ वहाँ का कंटेंट था, यानी कि जो अखबार में लेख छप रहे थे वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा था। इसीलिए इस चीज का संज्ञान लेकर अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्होंने आज सुबह से ही यहाँ पर रेड की है और यहाँ पर जो एसआईए के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर कागजात खंगाल रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। और सूत्रों की अगर हम माने तो जो इस अखबार की संपादक है अनुराधा बसीन, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो अगर हम देखें तो दिल्ली में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ, लाल किले के पास जो घाती वहां पर बम धमाका हुआ, उसके बाद से ही समूचे राष्ट्र में अगर हम देखें तो एजेंसियां एक्टिवेट हो चुकी हैं। उन तमाम जगहों पर रेड्स की जा रही है जहां पर आतंकियों की पनाहगाह हो या जहां पर आतंकवादियों को मदद मिलती हो, उन सभी स्थानों को खंगाला जा रहा है, वहां पर रेड की जा रही है और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। अगर हम बात करें आज की, तो आज सुबह से ही यहाँ कश्मीर टाइम्स के अखबार के दफ्तर में अगर हम देखें तो यहाँ पर रेड चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है जिस पर कश्मीर टाइम्स का बोर्ड भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे माले पर कश्मीर टाइम्स अखबार का दफ्तर स्थित है और सुबह से ही यहाँ पर रेड चल रही है और जो एजेंसियां हैं वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही हैं और प्राथमिकता यही है कि जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर कड़ा प्रहार किया जाए। अगर हम सूत्रों की माने तो जो कश्मीर टाइम्स अखबार है इसमें ऐसे लेख छप रहे थे जिससे कहीं ना कहीं जो पब्लिक ऑर्डर है उसको एक खतरा उत्पन्न हो रहा था और राष्ट्र विरोधी यहाँ पर लेख छप रहे थे इस अखबार में। इसीलिए एजेंसियों ने इसका संज्ञान लिया है और इस अखबार के जो कार्यालय में है रेड चल रही है और एजेंसियां जो है यहाँ पर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।